करते हुए स्थानीय नेताओं के साथ की बातचीत। दस दिवसीय अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम हुई शुरू। कार्यक्रम की शोभा माननीय कुलपति प्रोफेसर एसके सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हुई। साबू चौक में एक नई ताजा सब्जी बाजार खोला गया। स्थानीय महिलाओं ने श्री ऑरेंज चेन को इस तरह के लिए दिया धन्यवाद। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। चलन डालते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सचिव अमित शर्मा ने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र के विकासात्मक प्रयासों का आकलन करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला लेह के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के आधिकारिक 4 दिवसीय दौरे पर शुरुआत की। अपनी व्यापक 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सचिव ने इन सीमावर्ती समुदायों के दिलों में गहराई से प्रवेश किया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हुए स्थानीय नेताओं और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे बातचीत की। आज कारगिल क्षेत्र में 10 दिवसीय अनुसंधान कार्यविधि पाठ्यक्रम शुरू हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन समारोह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्मानित अतिथि, विशेषज्ञ, वक्ता और प्रतिभागी एक साथ शामिल रहे। इस कार्यक्रम की शोभा माननीय कुलपति प्रोफेसर एसके सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हुई। Hello, my name is Soini Jatak. Basically, I am from Arunachal Pradesh. Presently, I am pursuing my PhD from Department of Museology, Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh. I came here in this University of Ladakh to attend the research methodology coursework organized by the Department of Sociology and Geography of Ladakh University. This workshop is organized by the ICSSR, so I'm looking forward to learn research methodology from the expert. My name is Afsar Ali and I'm a PhD scholar in the Department of Management Study, University of Kashmir. I've been selected for the 10 days research work methodology coursework which is going to be conducted over here by the University of Ladakh in their Kargil campus. I'm delightful and also I'm happy that I'm here as the location. First of all, I would mention that the location of the university is so unimaginable. It's like a moonland, which I have never seen in my life. Another thing is the research methodology itself. It's a unique, and also the way Taki sir and other organizing committee has commenced. It's really beautiful and so well professional, and I must say that such workshop should conduct much more in future. Honestly, myself, Assistant Professor Varsha Gamre. I'm working at Humaira Khan College of Education from Mumbai University, affiliated to Mumbai University. Basically, research methodology course बहुत अच्छा initiative है in future generations के लिए. Even though मैं भी वही process में हूँ, I'm currently doing my PhD work. So उसकी need and requirement इतनी important है, जहाँ during the PhD के journey में इतने stuck up होते, इतनी confusion raise होते हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना विच इज़ रियली गुड, द कॉज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. और लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने जो इनिशिएटिव लिया, रियली आई एम रियली अप्रिशिएटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्कशॉप. मैं ऑल द वे मुंबई से यहाँ पर आई हूँ एंड थ्रू आउट वो जैसे एप्लीकेशन आया एंड आई एम वेरी फर्स्ट मोमेंट आई सेड कि नो आई हैव टू डू द पार्टिसिपेशन इन दिस कोर्स. एंड वो भी एक हिडन था कि ले घूमना है, लद्दाख घूमना है. सो वो मेरा इंटेंशन भी था ना. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. Hi, my name is Rigzin Amrul. I'm from Department of Sociology, Tezpur University, Assam, and I'm here in University of Ladakh, Kargil campus, to attend a workshop on qualitative and quantitative research methodology. And I would like to express my sincere gratitude to the organizing team, Department of Sociology and Department of Geography, University of Ladakh, Kargil campus, for organizing in a very well mannered and
we are very pleased to have here, and I'm also grateful for ICSSR to sponsor this course, and I'm looking forward to learn many things from this course. That's all. Thank you. जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में होने जा रहा है उसको आप कवर करने आए, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। ये एक्चुअली 10 डेज़ का रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जिसका अभी जस्ट इनाग्रल फंक्शन कंक्लूड हुआ है और आज 29 अगस्त से लेके ये 7 सितंबर तक ये कोर्स चलेगा और 7 सितंबर को कंक्लूड होगा। ये जो कोर्स है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से। और आपको बताते चलूँ कि ये जो कोर्स है फॉर द फर्स्ट टाइम कारगिल कैंपस में कंडक्ट किया जा रहा है और वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतनी एक फार एरिया और डिफ़िकल्ट एरिया और ऐसी जो अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी अपनी इन्फेंसी स्टेज पे है और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। और जहाँ तक इस रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स की बात है, इसका मेन फोकस है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर्स हैं जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हमारा फोकस ये है कि जो रिसर्च को किस तरह से रिसर्च की क्वालिटी को और बेहतर किया जाए, राइट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च से लेकर के एडवांस लेवल का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब से हमने ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने फ्लोट किया रिगार्डिंग दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, तो वी रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस जहाँ पे मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स ने अप्लाई किया। अब ड्यू टू द गाइडलाइंस फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी हम 30 को सिलेक्ट कर पाए और आज हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम असम, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम। साबू चौक पर हाल ही में एक नई ताज़ा सब्जी बाजार खोला गया जो विशेष रूप से साबू गांव की महिलाओं के लिए है। साबू गोपा समिति द्वारा स्थापित इस बाजार का उद्देश्य गांव की महिलाओं को अपनी उपज बेचने और आजीविका कमाने के लिए एक समर्पित व्यावसायिक स्थान प्रदान करना है। स्थानीय महिलाओं की श्री रिंचेन को इस तरह की पहल के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही पार्षद से एक छोटा सा स्टोर रूम बनाने का अनुरोध भी किया। ता फेरेस नंगायाले माने छुलाक मो नंग ठुस्ते ngata lakmo lakmo joste khong anu kalale tene ngai khong pasang ngata market mane ngata chongse nezuk met pa ngata kaxpo du gya nole tene chodma changme ta badget mangpo chus pasang na tene rezgar jang thoba me rukya nole tene ta yu ngai ezuk ngai yulpe achorin chen le khak khurte ika khong yang ika ngata market chik dot na jeste tapik sik nyung chek ngata ika gozuk chen jeste yu chwa jate no yale tene yu manga feres chache no ya no le gaun nang emong songba sang na ngata halale tene yang ngata char na yang ika na gari dulin duga no khyong sang nang tene mane ngatok ngata phute ika daksai khyong pa sang na feres thopte no द्रास को जिले का दर्जा देने की घोषणा के बाद आज द्रास में जश्न द्रास मनाया गया, जिसमें हजारों लोग डाक बंगला द्रास में एकत्रित हुए। लद्दाख से भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल, कार्यवाहक ईसी लेहताशी ग्यालसन, प्रदेश अध्यक्ष हज कमेटी के अध्यक्ष अली मजाज सहित अन्य लोग भव्य समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुत किया गया। तो फिर से एक बार सभी लोगों के साथ जुड़े हैं क्योंकि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिला है उसके बाद अब द्रास के अंदर जिस तरह काफ़ी जश्न का माहौल है, ऐसे में आज सबसे एक अहम शख्सियत जो लद्दाख से हमारे साथ लेह से हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि टशी गलसन साहब जो LHDC लेह के चेयरमैन हैं वो आज यहाँ पे द्रास में आए हैं और लोगों को बधाई दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लद्दाख के अंदर एक जश्न का माहौल क्रिएट किया गया है जो 5 डिस्ट्रिक्टें देकर, और उसके बाद आप लोगों को किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अभी मिला है वो यकीनन एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट होगा और इससे लोगों को आने वाले समय पर काफ़ी बेनिफिट होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं
इस जो बड़े अनाउंसमेंट के शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमारे श्री अमित शाह जी और हमारे जितने भी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन सब का मैं तहे दिल से लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। ये फिर से एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए हुआ है। 26 जो सितंबर जो हमारा 26 जो अगस्त है, तो जैसे आपको पता है 2019 में उसी अगस्त का महीना ही हमारे लिए बहुत शुभ रहता है। 5 अगस्त को जो है हमें यूटी का दर्जा दिया गया था। आज जो है 26 अगस्त को जो है हम लोगों को जो है इस नए यूटी में हमें पहले से जो है जब यूटी बना था तो इन 5 सालों में हमने महसूस किया कि एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख का टेरिटरी बहुत बड़ा है और सीमा इलाका है। तो यहाँ पे गवर्नेंस को अच्छी तरह से डिलीवर करने के लिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ज़रूरत है और यही जो है अक्सर हमने जो है सरकार के सामने रखा। उनका भी ये कहना था कि लद्दाख को हम एक ऐसा मॉडल यूनियन टेरिटरी बनाना है और लद्दाख के अंदर जितने भी जो लोग बैठते हैं, दुर्गम क्षेत्र में बैठते हैं, सीमा इलाकों में बैठते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना हमारा जिम्मेवारी है। और यूटी अगर हमने बनाया है तो लद्दाख के लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये सीमा इलाका है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लद्दाख जो है देश के जो है लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक जगह है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दृष्टि से उन चीज़ों को ध्यान में रख के जो है सरकार ने हमारे बातों को सुना और 26 अगस्त जो है फिर एक ऐतिहासिक दिन बना और इस यूटी को एक मैं कहता हूँ 1 स्टेप फादर जो है हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए जो है ये जो है 5 नए ज़िले बना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए। और बाकी आप ये जिस तरह से जो है पता नहीं कुछ लोगों का कुछ भी करे तो उनको क्रिटिसाइज़ करना ही करना है। 5 अगस्त को यूटी बना तब भी क्रिटिसिज्म हुआ, कहा कि ये यूटी इस तरह है, वो यूटी उस तरह है। आज अगर ज़िला बनने के बाद कहते हैं कि भाई ये तो फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। भाई डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट ही होता है ना जी। डिस्ट्रिक्ट जब दिया है तो डिस्ट्रिक्ट तो फुल फ्लैश ही होगा ना। अधूरा डिस्ट्रिक्ट कैसा होता है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब तो फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट होगा। अब इसका लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में तो बहुत कुछ अभी चर्चा करना है और सरकार के मन में और भी बहुत बड़े बातें लद्दाख के लिए है जो, लेकिन फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़िला बनता है तो वो ज़िला ही मतलब फुल फ्लैश ज़िला यहाँ का बनेगा। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का एक रुझान बढ़ गया है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं और द्रास के लोगों की एक देरीना डिमांड थी सर, जिसके लिए आप भी जानते हैं जो हमारा यहाँ मनमन जो गंडोला प्रोजेक्ट हमारा था उसको लेकर कहीं बार आप तक भी पूछे हैं और आपके ज़रिए भी गवर्नर तक ये डिमांड रखा है। तो इस चीज़ के लिए आपकी किस तरह की कोशिशें रहेंगी? और अभी आपने अपने स्पीच में कहा था कि द्रास बहुत जल्दी छोटा स्विट्ज़रलैंड बनेगा, किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ, द्रास को ज़िला का दर्जा जो दिया गया है, सबसे पहले जो है द्रास के लोगों ने देश के लिए जो काम किया है, देश के प्रति जो द्रास के लोग जो पेट्रियोटिक नेचर के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और 1999 में जो है कारगिल युद्ध में जो है द्रास के लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। आर्मी के साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है द्रास के लोगों ने काम किया है। द्रास के अलावा जो है बाकी कारगिल के और भी जगह के लोगों ने जो है इस 99 के युद्ध में सपोर्ट दिया है, लद्दाख के पूरे लोगों ने दिया है। लेकिन द्रास जो है जो बिल्कुल इमीडिएट आपके जहाँ पे वार जोन में ही ये पूरा इलाका रहता है, तो वहाँ के लोगों ने एक मिसाल कायम किया था। तो सरकार उस चीज़ को भुला नहीं है और सरकार ने ये सरकार जो है जनता का जो हित में काम करते हैं, एक स्टेट्समैनशिप की तरह काम करते हैं, देश को लार्जर हम एक विकसित भारत बनाने के सोच के साथ काम करता है। तो इसीलिए जो है द्रास को डेवलप करना मतलब देश को डेवलप करना। अगर विकसित भारत बनना है, देश के हर कोने में जो है तरक्की होना चाहिए। उसी सोच विचार के साथ जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। हमारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लीडर एक विचारधारा के ऊपर काम करता है और ना कि जो है पॉलिटिकल इमीडिएट बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं। अगर उस ऐसे काम करना था तो ये शायद इलेक्शन से पहले भी हम घोषणा कर सकता था, क्योंकि सरकार को तो पता था कि हम ये बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने सोच के जो है इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया है। और ये डिस्ट्रिक्ट बनाने का मतलब यहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो, दराज की तरक्की हो, जो दराज का जो पोटेंशियल है वो फुली एक्सप्लोर हो।
दराज में इतने पोटेंशियल है, दराज में मैं जेन्युइनली कहता हूँ दराज मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है। तो वो पोटेंशियल को टैप करने के लिए जो है दराज को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है और आने वाले दिनों में दराज के लोग खुद ही अपने किस्मत नए सिरे से लिखेगा और दराज में किस तरह का तरक्की चाहिए वो भी यहाँ के जनता तय करेगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके दराज को जो है बाकी जो नए जो डिस्ट्रिक्ट्स बने और हमारे जो पुराने जो डिस्ट्रिक्ट्स टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स उन सभी में भी जो है दराज भी जो है एक फॉरवर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है उसको सही मायने में जो है टैप करना है, जो गंडोलास हो और भी बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। स्कीइंग के लिए यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्कीइंग रिजॉर्ट दराज में बन सकता है। एक बार गडकरी जी ने कहा था कि दराज जो है दाऊस बन सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ द्रास के एक नामूर शख्सियत गुलाम रसूल नकवी जो काफ़ी पॉलिटिक्स के मैदान में काफ़ी महारत हासिल है, जिन्हें वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? ये द्रास के लोगों की एक देरीना डिमांड थी और ये आप लोगों के वक्त से भी काफ़ी जो है इसमें डिमांड्स रही हैं और द्रास के लोगों की एक देरीना डिमांड जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे पूरी की गई है। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की, ये डिस्ट्रिक्ट जब कारगिल डिस्ट्रिक्ट बना था, लेह से अलग हुआ था, तब से द्रास वालों की मांग थी। आज हम बहुत खुश हैं और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हम बहुत मशकूर हैं, जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, और जो खासकर लेह के एक्स MP GTN साहब जिन्होंने कई बार द्रास की डिस्ट्रिक्ट का मसला पार्लियामेंट में उठाया, और लेह के प्रेजेंट CAC साहब जलसन साहब और द्रास की इंटायर BJP की टीम के हम मशकूर हैं कि उन्होंने द्रास के हालात को देखकर, द्रास की जोग्राफी हालात को देखकर, सरहद पर नज़र रखकर द्रास को डिस्ट्रिक्ट दिया है। और द्रास इसका हकदार भी था क्योंकि द्रास वालों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस बॉर्डर में रहकर देश के लिए, शायद लद्दाख रीजन में या पूरे हिंदुस्तान में किसी ने दिया होगा। क्योंकि द्रास हर वक्त जो है बम और गोलों के साए में रहता है, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो। 99 में तो पूरा द्रास यहाँ से शिफ्ट हो गया था, सिर्फ यहाँ मर्द थे जो फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के बॉर्डर जा रहे थे। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये समझा कि द्रास वालों का हक है, क्योंकि द्रास वालों ने जो कुछ भी किया है कोई देश पर एहसान नहीं किया है। हम अपने देश का नाम चाहते हैं, हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं। जो द्रास वालों ने कुर्बानी दी थी या जो देश की खिदमत की थी, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका सिला दे दिया है। हम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत मशकूर हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक बहुत बड़ा फैसला आया उसके बाद जो है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो क्या आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका कोई सिला जो है आपकी तरफ से इसका बदला कुछ मिल सकता है? नहीं, नेचुरली देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ पर जलसा था, स्पीच हो रही थी, वहाँ पर भी है कोई अगर कोई एहसान करे तो एहसान का बदला शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से द्रास के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि द्रास जश्न मनाए, झूम उठाए, कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। जब तक बीजेपी जिंदा है तब तक द्रास बहुत आगे लेके जाएंगे। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, पार्लिमानी इलेक्शन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की अनाउंसमेंट दे सकती थी और उसके बाद इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा ले सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिकल प्लान इसमें पार्लिमानी इलेक्शन के बाद इस चीज के? इसमें मोदी जी जो है चाहे बहुत बड़े काम करे या छोटे छोटे काम कहे, वो इलेक्शन वोट को केवल देख के नहीं करते हैं। ये मोदी जी का लीडरशिप का क्वालिटी है। वो सबसे पहले देश को आगे रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर खुद को रखते हैं। बीजेपी में हम सबको यही सिखाते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। खुद का जब नंबर आता है, पार्टी का नंबर आता है, वो बाद में आता है। देश के सीमा सुरक्षा को देखते हुए सही समय पे मोदी जी ने इसको अनाउंस किया है। चुनाव में हार जीत होता है, हम तो सब चाहते थे कि बीजेपी जीते लद्दाख से। मुझे 5 साल का मौका मिला, मेरे से पहले तुप्तान साहब को मौका मिला, मेरे बाद जो है टशी गलसन जी को मौका दिया था पार्टी ने, वो भी जीते, हम सब चाहते थे। लेकिन यहाँ से नहीं जीत पाए, उस बात के हम सबको अनफॉर्चुनेट है, दुख है। लेकिन मोदी जी के जो प्लान है
वो कैलकुलेटेड होते हैं। मोदी जी ने सही समय पे जो है सही डिसीजन दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनका फिलहाल यही मानना है कि जिस तरह द्रास और बाकी जगहों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है और यकीनन उनकी तरफ से फिलहाल आश्वासन ये दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया है वैसे ही लोगों के अंदर अभी कहीं ना कहीं ये खदशात हैं कि क्या ये एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस होगा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जिन जगहों को मिला है क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस के साथ लोग इस को एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल इनका यही मानना है कि बहुत जल्द जो है इनकी तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोषित किया जाएगा तमाम जगहों को और उसी तरह के इंतजामात जो है तमाम उन डिस्ट्रिक्ट्स पे दिए जाएंगे जो अभी नए क्रिएशन हो रहे हैं। तो फिलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।